Hello everyone. Today we will do a question of quadratic equation chapter of class 10th. Quadratic equations, and it is class 10th. So find the discriminant of the following quadratic equation. The quadratic equation is x plus 5 whole square. It is equal to 2 into 5x minus 3. So let's start. A plus b whole square. It is a whole square plus b whole square means plus 5 whole square plus 2ab, 2 into x into 5, and it is equal to 2 into 5 10x minus 2 will multiply 3 also. 2 into 3 is 6. So it implies x square plus 5 ka square 25 plus 2 into 5 10, so it is 10x, and it is equal to 10x minus 6. 10x लेफ्ट में प्लस साइन का है, 10x राइट में भी प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे. सो एक्स स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 6 जो राइट में माइनस साइन का है वो लेफ्ट में आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0. Now it is x square plus 25 and 6 is 31 and it is equal to 0. Now discriminant d, the formula is b square minus 4ac. So this equation which we have got, we will compare it with ax square plus bx plus c equal to 0. So here a is what? X square का coefficient, that is 1. Here a is 1 and b is what? That is coefficient of x, nothing is there तो 0 होगा. And c is what? C is 31, right? So we will find discriminant. Discriminant is equal to b square minus 4ac as I have written above. b square that is 0 का whole square minus 4 into a is 1 into c is 3. C is not 3, 31. So it is 0 minus 4 ones are 4, 31 into 4. 4 ones are 4, 4 3s are 12 minus 124. So discriminant is negative. So here discriminant's value is minus 124. In this second question, if the quadratic equation px square minus 2 under root 5x plus 15 is equal to 0 has two equal roots, then find the value of p. So quadratic equation given is px square minus 2 under root 5x plus 15 is equal to 0. Here if we compare this equation with ax square plus bx plus c equal to 0, what will be a? X square का coefficient, so it is here a is equal to p. And what is the value of b? B is the coefficient of x, so here coefficient of x is minus 2 root 5, and c is the constant term, so here constant term is 15. Now we will write for two equal roots, discriminant is equal to 0. This is the condition that whenever there are two equal roots, discriminant is equal to 0. So b square minus 4ac, it is equal to 0. b square minus 2 under root 5 whole square minus 4 multiplied a is b and c is 15, that is equal to 0. Minus square is plus, 2 2s are 4, under root 5 into under root 5 is 5, so 4 5s are 20. तो जब भी आप माइनस 2 अंडर रूट 5 को माइनस 2 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 20 माइनस 15 4s are 60p and it is equal to 0. So minus 60p will be kept on the left side along with sign.
इट इज इक्वल टू प्लस का 20 राइट में चला जाएगा, माइनस का 20 बनेगा, माइनस माइनस आमने सामने कैंसिल, सो p विल बी इक्वल टू 20/60, 21 जार 23 जार, so it is equal to 1/3. The required value of p is 1/3. Question number 3. If ax square plus bx plus c equal to 0 has equal roots, then find the value of b. So solution, the quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. For equal roots के लिए क्या कंडीशन थी? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. इट इंप्लाइज डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. नाउ क्वेश्चन इज इफ दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b. तो यहां से b² जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस 4ac राइट में चला जाएगा, प्लस का 4ac बनेगा, और b किसके बराबर? जब भी आप स्क्वायर को रिमूव करते हो तो दूसरे तरफ प्लस माइनस साइन लगता है, और जो भी नंबर होता है उसका अंडर रूट हो जाता है, 4ac का अंडर रूट. सो b इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू ac, तो ac रहेगा ऐसे. अब स्क्वायर रूट में ये बन गया एक पेयर 2 और 2 का, सो b विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट ac, 2 अंडर रूट ac. क्वेश्चन नंबर 4. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4x² माइनस 12x minus a is equal to 0. So we will write for no real roots. For no real roots, discriminant is always less than 0. Right? So discriminant is b² minus 4ac. It is less than 0. So b is what? This minus 12. Minus 12 का whole square minus 4 into a is the coefficient of x square, that is 4, into c is what? Minus a. This is minus a. It is less than 0. Now minus 12 whole square is 144. माइनस की पावर जब भी इवन नंबर होगी प्लस बनेगा, माइनस इंटू माइनस इन प्रोडक्ट बिकम प्लस, 16a less than 0. अब 16a will remain here on the left, less than plus 144 दूसरी तरफ चला जाएगा, minus 144. a will be less than minus 144 upon 16. 16 ones are 16 nines are 144. So a will be less than minus 9. The question number 5. Which are the two consecutive odd positive integers sum of whose squares is 290? So let two consecutive odd positive integers. Let two consecutive odd positive integers. So one we can take here x and one we will take here x plus 2. Now why have we not taken x plus 1? मान लो x की वैल्यू 1 है, तब तो वो odd है. अगर मैं x प्लस लेता तो 1 plus 1 2 हो जाता, वो even बन जाएगा. So 1 plus 2 जो है वो odd बनेगा, इसलिए ये दोनों ही odd हो गए according to question. So it is sum of the squares is 290. So x का whole square plus x plus 2 का whole square, it is equal to 290. So x square a plus b का whole square क्या होगा? a square means x square plus 2 square means 4
प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू 290। तो 2x स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 4x, 290 को भी लेफ्ट में ले आओ, माइनस 290 इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वेयर प्लस 4x, 4 माइनस 290 जो है वो माइनस 286 बनेगा, इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं तो इनसाइड विल कम 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वेयर, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे 2x माइनस 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 एंड इट इज इक्वल टू 0। और यहां से x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 143 क्या बनेगा, 0/2 दैट इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसका वैल्यूज निकालनी है। सो x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac और इसका अंडर रूट अपॉन 2a, राइट। सो माइनस बी मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ x जो है उसको b बोलते हैं, -2 प्लस माइनस बी स्क्वेयर मीन्स x के कॉफिशिएंट का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a इज 1 एंड c इज व्हाट, माइनस 143 और इस पूरे का क्या होगा, अंडर रूट अपॉन 2a। सो 2 इंटू a इज 1 ओनली, एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट क्या है 1, -2 प्लस माइनस 2 2 जार 4, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्रोडक्ट, ए प्लस माइनस इंटू माइनस इन प्रोडक्ट बिकम प्लस, 143 को 4 से करेंगे इट इज 572 का अंडर रूट अपॉन 2। तो ये बना -2 प्लस माइनस 576 अंडर रूट अपॉन 2। अब आप 2 प्लस माइनस 576 का अंडर रूट क्या होता है 24 अपॉन 2। तो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस, 2 प्लस 24 अपॉन 2 कॉमा 2 माइनस 24 अपॉन 2। तो ये बनेगा 26 अपॉन 2 एंड इट इज माइनस 22 अपॉन 2। तो ये 13 आया और ये कटिंग करके -11 आया। नेगेटिव तो वैल्यू को आप नेग्लेक्ट कर दोगे क्योंकि आपको नंबर चाहिए। नेग्लेक्टिंग x equal to -11, therefore two consecutive odd positive integers are, क्या क्या अज्यूम किए थे, x एंड x प्लस 2, तो x आ गया 13 एंड x प्लस 2 मीन्स 13 प्लस 2, राइट। तो ये आगे 13,15। अगर आप 13 का होल स्क्वायर कर दो ना तो 169, 15 का होल स्क्वायर कर दो 225, 169 प्लस 225 को जो भी आप आएगा उसको ऐड करके देखोगे देन यू विल गेट 290। क्वेश्चन नंबर 6, if the difference of the roots of the quadratic equation x square plus kx plus 12 equal to 0 is 1, then what is the value of k? Now see, this is a quadratic equation. If I compare it with ax square plus bx plus c equal to 0, what is a here? Coefficient of x square, that is 1, b here is k and c is what, 12. Let alpha and beta be two roots of given quadratic equation. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स ले लिए मैंने, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं पहले, जिसे आप सम ऑफ द रूट्स बोलते हो। क्या होता है, -b/a, तो b आपके पास k है तो -k/1 यानी कि -k। फिर आप अल्फा बीटा निकाल लो। अल्फा बीटा क्या आएगा, c/a
दैट इज 12/1, ये आ गया 12। अब आपके पास सम ऑफ द रूट्स आ गया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ द डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1, राइट। तो एक फॉर्मूला है जैसे जो अप्लाई करेंगे, अब वो बना कैसे पहले मैं आपको वो दिखा दूंगा। जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, राइट। सो कैन इट बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। लेट्स चेक। अगर आप ये साइड ओपन करते हो तो आपके पास क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये तो आपने लेफ्ट साइड ओपन की। अब आप इसको सॉल्व करते हो राइट साइड को, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। तो 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा फिर से वही बना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है वो क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो अब आप क्या करोगे, वही फॉर्मूला लगाओगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा उसने आपको दे रखा है क्वेश्चन में, लिखा है ना डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1, तो आप यहां पर 1 पुट कर दो अल्फा माइनस बीटा की जगह, तो इट इज 1 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आ चुका है, ये देखो माइनस के, तो आप इसको माइनस के का होल स्क्वायर लिख दोगे माइनस 4, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई है आपके पास 12। 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज के स्क्वायर माइनस 12 4 ज़ा 48। अब आप इक्वेशन को सिंपली ऐसे लिख लो, के स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 1। तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 प्लस 48, एंड 1 प्लस 48 इज व्हाट 49। तो के विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 49 का अंडर रूट, यानी प्लस माइनस 7। लेकिन आपको नेगेटिव वैल्यू तो लेनी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही उसने बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द वैल्यू, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के। हियर व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, तो आपने क्या लिखना है, नेग्लेक्टिंग के इक्वल टू माइनस 7, देयरफॉर के इज इक्वल टू 7. So k equal to 7 is the solution of the given equation. So in this video I have done the solutions of all 6 questions of quadratic equations which are of objective type nature, but I have explained you these in detail so that you can understand these questions. So if you have understood these, give your views in comment section, like the video, and if you think the videos can benefit other students, share the link of the channel and send these videos to other classmates so that they can get benefited, and ask them to subscribe the channel. Thank you.